जिसनू मत आवे सो सतगुरु माही समाना। एह वाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तक गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। फुन है महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चातुर्क चित सुचित सो साजन चाहिए। जिस संग लागे प्राण तिसै को आहिए। बन बन फिरत उदास बूंद जल कारणे। हर हाम त्यों हर जन मांगे नाम। नानक बलिहारण मित कचित अनूप। मरम न जानिए गाहक गुनी अपार। सो तत पछानिए चित चित समाए। ताहो रंग कना हर हाम। चंचल चोर मार ता पावे सच तना। चित चित समाए
ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਕਣਾ ਹਰ ਹਾ ਚੰਚਲ ਚੋਰੈ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪਾਵੈ ਸਚ ਧਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫੁਨਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11ਵਾਂ 12ਵਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ 1362 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤਗੜ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੱਲ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੋ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਚ ਨਾ ਨੱਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਔਰ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਯੋਧੇ ਬਣੋ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ
जिथों तक साडा वस चलेगा करना कराउणा तो उस वाहिगुरू ने है। आओ आपां खड़े हो जाइए कि किसी नूं भुखा नहीं मरन देना, लगदी वाह किसी नूं ऑक्सीजन तो बिना नहीं जान देना, लगदी वाह असी दवाई तो बिना नहीं जान देना। कोई श्वासां तो बिना चला जाए, जिहदे श्वास ही पूरे हो गए ने वाहिगुरू दे घर विच, उसनूं डॉक्टर भी नहीं रख सकदा। पर साडा यतन होना चाहिए कि असी बचाउण वाले पासे चलना है। आओ एक कारवां बनाइए। देशां विदेशां दी संगत नूं मेरी बेनती है कि अगर तुसी एक एक दो दो मशीनां भी बाहरों खरीद के अगर हिंदुस्तान नूं तुसी भेज सकते हो, तुहाडा कोई नहीं वाकब, बड़ा सौखा जिहा एड्रैस है, दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी गुरुद्वारा बंगला साहब पा दिओ। जिन्नी जल्दी हो सके अपने भैणां भरावां नूं, रिश्तेदारां नूं, दोस्तां मित्रां नूं, जां उन्हां अपने गुरु भाइयां नूं जिन्हां नाल साडा बहुत वड्डा रिश्ता है, साडा सिक्खी दा बहुत वड्डा परिवार है। आओ आपां आप बचाउण दी कोशिश करिए। जिहड़ा इत्थे ऑक्सीजन जनरेट करन वाला ये इंस्ट्रूमेंट 80-90 हज़ार लख 1.5 लाख का है, उतों 10-20 हज़ार का बाहरों आ जाता है। सो जिन्नी जल्दी हो सके आप जी इन्हां संस्थावां की मदद करो ताकि जिहड़े बैड लगे ने उत्थे मरीज नूं सहूलत मिल सके। ऑक्सीजन नहीं होएगी कुछ नहीं हो सकता, दवाइयां नहीं होणगियां कुछ नहीं हो सकता। बाकी उन्हां सारे वीरां नूं बेनती है जिहड़े अज मरदियां दे मूँह चों पैसे कढ रहे ने, ना पाप करो, ये मौत ने एक दिन तुहाडे घर भी आउणा है। तुसी सेवा नहीं कर सकते, कमा लो 5-10%, 15-20% कमा लो, पर लूण विच आटा गुन्नण की कोशिश ना करो। ये पैसा कदे किसी दे नाल नहीं जे जांदा। आओ ना मनुखा नूं मारन दे विच पापी बणीए। बिना कारण पॉजिटिव रिपोर्टां बनाईयां जा रही ने, बिना कारण बैड अंगेज दसे जा रहे ने ताकि बीमार की कीमत वधाई जा सके। नहीं, मैनू नहीं अज तक पता लग्या कि कोई ऐसा पैसे कमाउण वाला अमीर परिवार उहदी दूजी तीजी जनरेशन विच कंवले पागल ना होण। अगों जनरेशनां रुक जांदियां ने, परिवारां विच बच्चे जमणों हट जांदे ने। रब बहुत डाढ़ा है। आप अपने बच्चों की सुख मंगीए, परिवारां की सुख मंगीए, अपनी सुख मंगीए, पर उस रबत के भले तो बिना हो नहीं सकनी। सो आओ तन करके मन करके धन करके सेवा करिए। मैं तो रोज़ बेनती करदा आंढ गुआंढ गली मुहल्ले की जिम्मेवारी लो। जे तुहानूं लगदा है भी नहीं तो फिर दिल्ली कमेटी का प्लेटफार्म तुहाडा अपना प्लेटफार्म है। अखां मीट के आप जी इत्थे पहुँचो, इत्थे सेवावां दिओ। तुहाडा एक एक पैसा जिहड़ा है वो सेवा दे विच लग रहा है। आपां सारे रल मिल के सेवा करिए। टीम वर्क हुंदा है, कोई भी कल्ला व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। दिन रात आपां सारे चलांगे तो इहदे विच मानवता की सेवा होवेगी और सिख धर्म की बहुत इज्जत होवेगी, दुनिया विच सन्मान होवेगा। जदों ये शब्द कहे जाते हैं कि 84 विच लोग गुरुद्वारा लभदे सी कि अग लाउणी है, अज गुरुद्वारा लभदे ने कि जिंदगी लैनी है। गुरुद्वारे दे बाहर खलो के पुछदे ने गैस हैगी है, ऑक्सीजन हैगी है। ये कुदरत दा करिश्मा है, कुदरत दा बदलाव है। बंदे दियां कीतियां बंदे अगे आउंदियां ने। आओ आपां कोई ऐसा चेत अचेत भी पाप ना करिए जिहड़ा मुड़ साडे अगे आवे। आपां सारे अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे दी शिक्षा लैके सब दे दुख वंडाइए। ना सोचिए धर्म किहदा है, इहदी जाति किहड़ी है, ना सिर्फ ये वेखिए बीमार कौन है, दुखी कौन है। आओ सारे उहदी मदद करिए।
अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी। हे प्राणनाथ गोबिंद कृपा निधान जगत गुरो। हे संसार ताप हरण करुणा मैं सब दुख हरो। हे शरण जोग दयालह दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक। राम दामोदर माधव ज्योत रूप हरि आप। गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो। तत् स्यों तत् मिलायो। अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो। अमरदास अमरत छतर गुर रामह दियो। गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण। मूरत पंच परमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैण। बदबख्त हम चूं बखील गाफिल बेनजर बेबाक। नानक बुगोयत जन तुरा तेरे चाकरां पाखाक। हाजरा हजूर जहरा ज़हूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तख्त दे मालक। रूहानियत दे भंडार कमाल करामात कायम करीम रजा बख्श राज़िक रिहा कुन रहीम। अमाह बख्श बख्शिंद है ओ दस्तगीर खता बख्श रोज़ी देहो दिल पजीर। शहनशाह वाली सुखां दे खजाने दुखां दे मेटनहार। रोगां तो दुखां तो बचा के नरोआ जीवन देण वाले सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन दरबार दियां आप हाजरियां भर रहे हो। सतगुर सच्चे पातशाह अष्टम बलबीरा श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी बख्शिश करन। आप मेहर करके ये विचारां करवाउण। विचार आरंभण तो पहला बख्शो असीस। कोई भी रसना बिरवी ना रहे। गज वज के सारे जिन्हें गुरदरबार विच आप मौजूद हो श्री हरकृष्ण साहब महाराज जी सच्चे पातशाह की सरदल की धूड़ लै रहे हो। जिन्हें घर बैठे देशों विदेशों के विच मीडिया राही सुरत करके सतगुर जी के दरबार की हाजरियां माण रहे हो। बख्शो असीस जी। फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिंह साहब जी पासों आप जी ने हुक्म रूप अज की लड़ीवार कथा जिहड़ी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे शब्दां ते सलोकां तो बाद अज फिर तो ये लड़ी आरंभ हुई है। 1362 अंग ते सुशोभित सतगुरु श्री गुरु अर्जुन साहब महाराज पंजवें पातशाह जी के मुखारबिंद तो उचारण ये बाणी, जिस बाणी का सिरलेख है फुनहे। फुनहे दे अर्थ जिहड़े कान सिंह नाभा जां गुरबचन सिंह जां भाई वीर सिंह जी के कोशां विच उपलब्ध है।
ਉਹ ਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਤੁਕ, ਜਿਹੜਾ ਪਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਖੱਲਸ ਬਾਰੰਬਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਵ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੁਨਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਨਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਔਰ ਇसी ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਇसी ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇसी ਕਾਵਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਵ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪੁਨਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੁਨਹੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜ ਲੋਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਲੋਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੀ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਾਪ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏ। 11ਵਾਂ ਤੇ 12ਵਾਂ ਪਦਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ 11ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚਿੱਤ ਸੁਚਿਤ ਸੁਸਾਜਨ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਸੈ ਕੋ ਆਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਦਨ ਹੈ, ਚੀਸ ਹੈ, ਪੁਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਾਂਗ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਵਸਲ ਤੱਕ ਦੀ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੱਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਇੱਕ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਏ ਨੇ, ਛੱਪੜ ਦੇ ਛੱਪੜ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਾ ਧਾਰ ਮੀਂਹ ਵਰਸਦੇ ਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਰਸਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂਗ ਹੈ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਅਬਚਲ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ, ਤੂੰ ਅਡੋਲ ਕਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾਹੀ, ਤਾਂ ਹਮ ਕੈਸੀ ਤਾਤੀ। ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਏਕ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਇਆ, ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਬਸ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੂਰਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਇਵੇਂ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚਿੱਤ ਸੁਚਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਹੋਏ, ਸੁਸਾਜਨ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋੜੀਂਦੜਾ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਲੋੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਗਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਏ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਚੋਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਣੇ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਤਰਿਕ ਵਾਲੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ, ਅੰਦਰ ਲੋਚਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਤਲਬ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਾਤਰਿਕ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਤਰਿਕ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਸਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ, ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ, ਮਾਣ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਤ੍ਰਿਖਾਣਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉ, ਹੋਂ ਘੋਲੀ ਜਿਉ ਘੋਲ ਕਮਾਈ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਹੈ ਚਾਤਰਿਕ ਚਿੱਤ ਸੁਚਿਤ। ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹੋਂ ਫਿਰੋਂ ਖੋਜੰਤੀਆ। ਤਿਸ 10 ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਉਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਭੀ ਨਾ ਤਰੀਜੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਵੇਂ ਦੀ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਚਾਤਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤਿਸੰਤੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸ ਇੱਕ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈਵੂੰ ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦਿਉ, ਜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਚਾਤਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤਿਸੰਤੀਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਗਲੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝੰਤੀਆ। ਜੇ ਤਿਖਾ ਬੁਝੇਗੀ ਤੇ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਮਿਟੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਠੱਲ ਪਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਫੈਲਿਸ਼, ਨਾ ਦਿਖਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਨਾ ਚਕਾ ਚੌਂਦ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਚਾਤਰਿਕ ਚਿੱਤ ਸੋ ਚਿੱਤ ਸੁਸਾਜਨ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਸਾਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਸੈ ਕੋ ਆਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਜਾਉਂ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਤਰਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤਿਸੰਤੀਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਗਲੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝੰਤੀਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਜਾਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿਉ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਸਰੋਕਾਰ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਪੀ ਤਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਿਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਣ। ਤਿਲ ਜਿੱਡਾ ਮਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਸੈ ਕੋ ਆਹੀ ਹੈ। ਆਹੀ ਹੈ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਕੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਬਾਬਤ ਚਾਤਰਿਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਬਨ ਬਨ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਣੇ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੋਏ, ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕਮਲੀ, ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ ਨੇਹੋ। ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਹੈ,
ਉਹ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਰ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਉਸ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਲਈ ਕਿ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੇ। सूख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार है। सब कुछ मैं कुर्बान करता, मैं सब कुछ बलहार करता सच्चे पातशाह। अब हम चली ठाकुर पे हार, मैं चात्रिक बन के आया। जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार। लोगन की चतुराई उपमा ते बैसंतर ढार। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है डार। असी लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। क्योंकि मैनू पता है कि इस तो घट सरना नहीं है, क्योंकि प्राणा दा आधार प्रभु है। इस करके साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। तोरती जाओ तुम गिरवर तो हम मोरा, इस तो बिना सरना नहीं है। जे तुम पहाड़ बन जे तो मैं मोर बन के पैलियां पावां तेरे उत्ते। जो तुम चंद तो हम भए हैं चकोरा, तू मेरे प्राणा दा आधार है। जे तू चंद्रमा तो मैं चकोर बन के तेनू वेखा। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जे तू दिया बन जाए तो मैं अपने आप नू बाल के वट्टी बना के अपने आप नू बिल्कुल बालना, पर मैं तेरे दीवे उत्ते मान प्राप्त करा बलन दा, मैं बाती बन जा। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती। तेरे तो बिना सरना नहीं, तू प्राणा दा आधार है। बन बन फिरत उदास, जिथे तू है उथे मैं हाँ। जिथे तू है साहिब संकट वै सेवक भजै। चिरंकाल ना जीवै दऊ कुल लजै, तेरी भगत ना छोडू भावें लोक हसै। ये नहीं छड्डना दर कि कबीर जेहदर आवत जात हो, हटकै नाहिन कोय। सोदर कैसे छोड़ी है, जो दर ऐसा होए। बन बन फिरत उदास, बूंद बूंद जेड़ी है स्वांति है, बूंद जल कारणे उहदे करके। ते जे एक बूंद हुण ना मिली सच्चे पातशाह, ते फिर की फायदा पुकार करन दा। कर दे कृपा सच्चे पातशाह, ये स्वांति बूंद मैं चात्रिक बन के आया, मैं सब कुछ सौंप दिता। इथों तक ये भी कह दिता कि त्यां दुख भूख सद मार, ए पेदात तेरी दातार। घटो घट ये मन्या ते सही कि दुख भूख ये सब दात ही है तेरी। ये होर किसी लिखत या धर्म दे विच नहीं मिलेगा। कोई धर्म दा रहबर नहीं कहेगा कि दुख भुख ते मार उहदी दात है, पर गुरु नानक साहब कहंदे ये भी उहदा ही है। क्यों? चात्रिक है, वो प्राणा दा आधार है। कीता करना सर्ब रजाई, किच कीचा जे कर सकी है। अपना कीता कछु ना होवै, ज्यों हर भावै त्यों रखिया। प्राणा दा आधार है। पर प्रभु दियो ये चात्रिक बूंद, चात्रिक नूं बूंद दियो। ते जे हुण ना मिली ते दुनिया दे धर्म ग्रंथ कहंदे कोई नहीं जी स्वर्गां च हो जाएगा, मरण तो बाद हो जाएगा। भगत जी कहंदे मरण तो बाद कुछ नहीं, जो है जिउंदे जी मन नूं मारना। नृप करनिया कै कारण एक भया भेख तारी, काम आर्थी स्वार्थी वाकी पैद सवारी। तो गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म ना नस है। तुहाडी शरण विच आया सच्चे पातशाह, की फायदा होया जे दुनिया दे धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र ये कहंदे कोई नहीं मरण तो बाद होएगा। उथे अड़ंबे जाओगे तो नरक है, जे बनारस आओगे तो स्वर्ग है। जे सिर ते आरा चरवा लोगे, सारी दौलत इथे पुरोहितां नूं दान कर जाओ तो तुहानूं मिलेगा अगे सुख। अगे दा नहीं पता, ये नहीं है। तीर्थ जाऊं तो हाँ हाँ करते, पंडित पूछो तो माया राते। सो स्थान बतावो मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। मैनू हुणे दसो तो गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म ना नासी। इत्थे आया जे हजे भी कर्मां दा लेखा जोखा देना पै रहा है कि मन कामना तीर्थ जाए बस्यो, सिर करवत धराए, मन की मैल ना उतरे इन बिद। जे लख जतन कराए इहो नहीं। हुणे जे शेर दी शरण च आके भी मैनू गिद्दड़ तंग कर रहे है, जंबुक ग्रास रहे, तो फिर शेर दी शरण विच आउण दा फायदा की। तो गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म ना नास है। सिंह शरण कत जाइए, जो जंबुक ग्रास है। तो फिर बन बन फिरत उदास, बूंद जल कारणे। एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावे। जे एक बूंद नहीं मिली, प्राण गए सागर मिले, फुन कामना आवे।
प्राण जाण तो बाद तू कहना लै मैं तेरे अगे समुंदर रख देना, वो मेरे लिए की लाहेवंद। भगत जी कहते एक बूंद जल कारण है, मैनू हुणे ही दियो, अब की बार बख्श बंदे को, बहुर ना पाओ जल फेरा। ये मरण तो बाद कोई स्वर्ग नरक नहीं। सच्चे पातशाह कहते इत्थे ही जिउंदे जी ही चातरक दी पुकार है स्वांति बूंद दी, पूरा ते जिउंदे जी होना है। एक बूंद जल कारण चातरक दुख पावे, प्राण गए सागर मिलै, फुन कामना आवे। प्राण जो थाके थिर नहीं, कैसे बिरमाऊं, बूढ़ मुए नौका मिलै। मैनू मैं डुबदे जांदे नू डुबदा डुबदा बंदा मर गया, रब कहता चल हुण बेड़ी ते सवार हो जाए। कहो काहे चढ़ावूं मैं, हुण क्यों चढ़ा, हुण ते मेरे प्राण निकल गया। जिउंदे जी सच्चे पातशाह मैनू हुणे ही अगाहां कू तराग, पिछा फेर ना मोटड़ा। नानक सिज अवेहा वार, बहुड़ ना हुई जन्मड़ा। मैनू अगे दा नहीं पता, हुणे। ते फिर जे हुणे लेना है, भगत जी कहते इस रूप दे विच आके जोदड़ी कर पुकार कर। मैं नाही कछ हों नाही, किछ आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख लियो, सदना जन तोरा। बन बन फिरत उदास बूंद जल कारणे, हर हां ही सच्चे पातशाह कर कृपा। हर हां त्यों हर जन मांगै नाम, नानक बलहारणे। मैं भी प्रभ स्यों मन लीना, ज्यों जल मीना, चातरिक जिवें तिसंतिया। मैं भी यही कहना सच्चे पातशाह कृपा जल दे, नानक सारंग को होए जाते तेरा नाए वासा। हुणे ही कृपा जल दियो सच्चे पातशाह। यह है अंदर दी पुकार। गल साडे ते टुकारे सतगुरु गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह शहीदां दे सिरताज ते उदाहरण टेडिया जूना दा लै रहे, चातरक दा लै रहे, पर चातरक विच गुण है। चातरक नाम अमृत स्वांति बूंद तो बिना किथे होर नहीं। गुरु का सिख सच्चे गुरु दी प्रीत तो बिना किथे होर नहीं, किसी होर पासे नहीं। और सतगुरु जी इस पदे दे विच भाई यही पुकार, यही खिच, जे अंदर विछोड़े दी तांग है, फिर सच्चे गुरु नूं इउं पुकार करो जिस तरह चातरक दी पुकार है, जिस तरह बबीहे दी पुकार है। सतगुरु जी अगले 12वें पदे दे विच जो कृपा करते हैं, बख्शिश करते हैं। मित का चित अनूप मरम ना जानिए, गाहक गुनी अपार सुतत पछानिए। बहुत कमाल दी एक कावक बंदिश है। बलहार जाइए सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी नूं धुर की बाणी इत्थे जे सैकड़े कवि भी इकट्ठे कर लिए, इहो जी कावक शैली नहीं बना सकणगे। तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाने। ये है कि जोत रूप हर आप गुरु नानक का है। यह है कि सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर जी इत्थे कहंदे है मित का चित अनूप। पार ब्रह्म परमेश्वर मित्र, मित्र आख्या। सुन यार हमारे सज्जन, ये भी मित्र है वाहिगुरु। सतगुरु मित्र मेरा बाल सखाई, हाँ रह ना सका बिन देखा मेरी माई। मित्र है। मित का चित अनूप। चित का मतलब उहदे अंदर की है वो कोई नहीं जान सकता, वो अनूप है। अनूप तो बिना उहदी महिमा अपरंपार है। चोजी मेरे गोबिंदा, चोजी मेरे प्यारिया, हर प्रभ मेरा चोजी जियो। मित का चित अनूप, मरम ना जानिए। कोई उहदा मरम नहीं जान सकता, कोई उहदे दिल दे अंदर दी जान नहीं सकता। कि मता करे पछम के ताई, पूरब ही ले जात, खिन मैं था पुतापन हारा, आपन हाथ मतांत, सियाणप किछू कामना आत। जो अनुरूपियो साहिब मेरो, ठाकुर मेरे, जो अनुरूपियो ठाकुर मेरे, होए रही ओ बात। ओही कुछ होना है, पर बंदे नूं नहीं पता की होना है। इत्थे नहीं कोई जोर नहीं चलता किसी का। इत्थे ते गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे हर की गत ना को जाने, जोगी जति तपी पचहार है, और वो लोक सियाने सियाने। मित का चित अनूप, मरम ना जानी है। कौन जान सकता है कि सच्चे पातशाह तुसी की चाहुंदे हो।
ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਵੇਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਚਿੱਤ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਵਰਤਣਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਬ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ, ਅਨੂਪ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਤ ਕਾ ਚਿਤ ਅਨੂਪ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਗਾਹਕ ਗੁਨੀ ਅਪਾਰ ਸੁਤਤ ਪਛਾਣੀਐ। ਫਿਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਣੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹਕ ਗੁਣੀ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਗਾਹਕ ਗੁਣੀ ਅਪਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਣ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਐ ਤਉ ਗੁਣ ਸਹਿਗੋ ਜਾਏ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਉ ਗੁਣ ਲਾਖ ਵਿਕਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ। ਹਜੇ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਉਤ ਭੁੱਖ ਹੈ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਏ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ, ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ, ਸੋਈ ਦਸ ਉਪਦੇਸੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਨੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਮਨ ਤੈ ਕੋ ਡੇਵਸਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਤਾਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਹੈ ਗਾਹਕ ਗੁਨੀ ਅਪਾਰ, ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਤਾਏ ਜੀਓ। ਮੇਰੋ ਸੁੰਦਰ ਕਹੋ ਮਿਲੇ ਕਿਤ ਗਲੀ, ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਤਾਏ ਜੀਓ। ਗਾਹਕ ਗੁਨੀ ਅਪਾਰ मेरो सुंदर कहो मिला कित गली, हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली। प्रिय के बचन सुखाने ही अरे ये हुण चंगे लगते ने, ये चाल बनी है भली लटुरी मधुरी ठाकुर भाई। मैं ते विंगी टेढ़ी सी, मेरे कर्म बहुत माड़े सी। नारायण निंदस काए भूली गवारी, दुकृत सुकृत थारो कर्मरी। मेरे कर्म माड़े सन, लटरी मधुरी, छोटे मन दी मैं मालक सी। पापां दे नाले मन गफलत दे विच भार दे विच दबिया होया सी। टेढ़ी तुरन वाली सिद्धी ते मैं कदी तुरी नहीं पार ब्रह्म दे मार्ग ते। लटरी मधुरी, पर उस साध जिन्हां दी संगत दे विच, बख्शियां दी संगत विच, गुणी गाहक दी संगत दे विच, बख्शियां होयां दे नाल बैठ के उहदी कूक पुकार दे विच चातरिक दी तरह ठाकुर भाई उस प्रभु नूं भागी, उहनूं भागी। ताइयों ते गुरु रामदास जी कहंदे है, कहंदे जे अंदर खिच है ना ते इक्को ही खिच रखो। जेड़ी खिच चातरिक दी स्वांति बूंद लई है, एक सिख दी खिच प्रभ मिलने दे चाव विच होए। ओ इस चा हाँ पंथ दसाई धन गुरु रामदास श्री राग महला चौथा। हाँ पंथ दसाई नित खड़ी, कोई प्रभ दसै तिन जाऊं। ये है गाहक गुनी अपार। ये गाहक ने, इन्हां नूं गाहक गुणी गाहक क्या कि हाँ पंथ दसाई नित खड़ी, कोई प्रभ दसै तिन जाऊं। जिनी मेरा प्यारा प्यारा राविया गाहक गुनी अपार। ये ने गाहक, जिनी मेरा प्यारा राविया तिन पीछे लाग फिराऊं। कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाहूं। ये है गाहक, ये है वो बख्शे हुए जो दीसा गुर सिखड़ा। ये है वो कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पै आप विचाई दर्शन हर देखण कहताई। होर कोई मन दे अंदर पुकार नहीं। उन्हां सत्संगी जना, उन्हां गाहक गुणी जना दी संगत सिर्फ दर्शन हर देखण कहताई। कोई जन हरस्यों देवै जोर, गाहक गुनी अपार।
कोई जन हारस्यों देवै जोर, चरण गहों बको शुभ रसना, दीजै प्राण अकोर। मैं सब कुछ तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी ढोवा, जो देवै सो खाई, नानक गरीब ढै पया द्वारे, हर मेल लिहो वडियाई। उन्हां सतसंगी जनां दी संगत दे विच गाहक गुनी अपार, सो तत पछानीए वो दसेगा, वो गुरमुख दसेगा, गुरसिखां दी संगत दसेगी। इत मार्ग चले भाई अड़े, गुर कह सो कार कमाई जियो, त्यागे मन की मतड़ी विसारे, दूजा भाओ जियो, यों पावै हर दरसावड़ा, न लगै तत्ती वाओ जियो। यह है वो अवस्था जिस अवस्था दे विच आनड़िए मानड़ा काय करे, आपनड़ै घर हर रंगो की ना माणे, शहो नेड़ै धन कमलिए, बाहर क्या ढूंढै, भैकियां दे सलाइयां नैणी, भावका कर शिंगारो। ये गाहक गुणी अपार गुरमुख प्यारे दसणगे, इवें इवें मन नूं तू समर्पित कर, मन भी अर्प, सब कुछ अपनी हौमै अपनी सियाणप अर्प, ते जेड़ा अर्पदा फिर वो केड़ी पुकार रखदा। अगे साहिब जी बख्शिश कर दे, चित्त है चित्त समाए ताहूं वै रंग कना। ये गुणी गाहक गुरमुख जन दसदे ने कि अपना चित्त पार ब्रह्म परमेश्वर दे चित्त विच समा। कल सच्चे पातशाह हजूर जगत पिता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश दिहाड़ा, शताब्दी, कुल धरती ते वसदे नानक नाम लेविया सब ने बहुत खुशी मुबारक नाल मनाई है। चित्त है चित्त समाए, चित्त है चित्त किवें है, देखो ये इस गल नूं गुरु तेग बहादुर साहब दे जीवन दियां साखियां दृढ़ करनगियां। चित्त है चित्त समाए तां होवै रंग घना। जे असाम दी धरती ते बल्कि दी मां उडीकदी है सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब आउण, वो बंदगी करन तो पहला एक आसन विछा के रखदी है, ते आसन विछा के वो प्रभु गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दे मन दे अंदर चित्त दे अंदर इउं ध्यान करदी है कि सच्चे पातशाह हजूर तुसी हाजिर नाजर होवो, हाजिर नाजर होवो। चित्त है चित्त समायता होवै रंग घना। ते गुरु तेग बहादुर साहब असाम दी धरती ते पहुंचदे है, ते उहदे घर जांदे है, ते सच्चे पातशाह पुछदे है कि मैनू एक गल दसो माता जी, तुसी एक आसन जिहदे उत्ते आप बहिंदे हो वो विछाउंदे हो, ते एक आसन होर विछा के क्यों बह जांदे हो बंदगी करन? कहंदे इह तुहाडे लई विछाउंदी आ। कहंदे पहला ही? कहंदे हाँ पहला ही। कहंदे इसलिए पहला क्योंकि बंदगी करते करते चित्त इन्ना जुड़ जाता है, तो फिर उठ के ये ना होए कि मेथों आसन ना बिछाया जाए, जे तुसी आओ। गुरु तेग बहादुर साहब पहुंचे, चित्त है चित्त अमरूप। जे त्रिवैणी तो इलाहाबाद तो सतगुरु जी पटने की धरती जा रहे, उत्थे भाई फग्गू आवाजा मारदा है गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं कि सच्चे पातशाह देहो दरस सुख दातिया, तुसी आओ दर्शन दिओ। ते उत्थे पिंड दे लोग मौजू बनाउंदे, किथे पटना किथे पंजाब, घर दा दरवाजा बहुत वड्डा रखिया। कहंदे ये क्यों? कहंदे मैं सने घोड़े ही आउण, घोड़े ते सवार होके आउण, घोड़े तो उतरन ना। हद हो गई है। चित्त है चित्त समाए, जिन्हें चित्त अपना गुरु दे चित्त विच समा लिया, गुरु प्रतख दर्शन देंदे है। ते भाई फग्गू ने घर बनाया, बाहर उन्हें वेड़ा बनाया, चौखंडी बनाई, उत्थे एक पलंग विछाया। कहंदे इस पलंग ते बहना नहीं। क्यों? कहंदे गुरु तेग बहादुर साहब आके इत्थे बैठणगे। चित्त है चित्त समाए। भाई फग्गू ने चित्त दे विच चित्त समा के बंदगी की। गुरु तेग बहादुर साहब सने घोड़े उहदे घर आए ते उस आसन ते बैठे, उन्होंने बरकतां दित्तियां। ते आ लहरा गागा सुनाम संगरूर दे लागे मालवे दा पिंड, इत्थे भाई मुगलू चित्त है चित्त समाए आखिरी सवासां नूं गिण रहा है कि हुण आखिरी सवास ने। बस ये मन की मुराद है कि आखिरी सवास मेरे गुरु तेग बहादुर साहब 9वें जामे की गोद दे विच ही निकलन। ते भाई मुगलू कोल सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब पहुंचते हैं। अंतिम सवास ने उहदी गोद, गुरु की गोद ते अपनी गोद च गुरु पातशाह दा सीस रखते हैं ते जपजी साहब का पाठ करते हैं। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल। ये है चित्त समाए, जिहड़ा गुरु नूं चेते करदा है।
मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना पड़िया रे। ज्ञान ध्यान किच कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। ओ दुनिया दे लोको, गुरु तेग बहादुर साहब सदा ही साडे पापां दा नंगेज ढक्कण वाले ने। अज भावें असीं ना शुक्रे हो गए गुरु तेग बहादुर साहब जी दियां कीतियां एडियां वड्डियां दास्ताने कुर्बानियां, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे कि तेग बहादुर साहब गुरु पातशाह पिता जी ने ओहो जा कारा करता जिहड़ा अज तक किसी ने नहीं कीता। इट हैज़ टू बी नोन एज अनबीरेबल अनडिफाइंड एबल मार्टायर। कहंदे इस धरती ते ऐसी शहीदी अज तक कोई नहीं दे सकिया। ठीकर फोर दहलीज सिर, प्रापुर किया प्यान, तेग बहादुर सीकरिया करी ना किन्हू आन। पर धरती दे लोगो, तुसी भावें 100 वारी लख वारी ना शुक्री हो जाओ, गुरु तेग बहादुर साहब ने फिर तुहाडा नंगेज टकना है। ये गुरु दा बिरद है। हमरी गणत ना गणियां काई, अपना बिरद पछाण। ते अज जिहड़ा रोग धानक रोग इस धरती ते वरत रहा है, श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निदे आवे ताए। सब थाई होए सहाय, भावें भाई फग्गू है ते भावें मुगलू है ते भावें पंजाब च जंडिया पिंड दे विच मालवे दी धरती ते मरदे सन लोग। उत्थे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब उत्थे पहुंचे। साखी मालवे रटन पोथी दे विच ये साखी लिखी है। सतगुरु जी मालवे रटन च पहुंचे है, कहंदे जी इत्थे लोग मरदे ने। जमींदार कहंदे महाराज कहंदे आ जिहड़ा छप्पड़ है इहदे विच इशनान करो। कहंदे इशनान करन नाल, कहंदे इह ते जहर रूपी छप्पड़ है। कहंदे कल्ला इशनान करन नाल नहीं, गल ते भावना दी है। भावना गुरु नानक साहब दी रखो, तुहाडे रोग दूर होणगे। रोग दूर कीते सतगुरु जी ने। ते अज भी दुनिया दे लोको, देश विदेशां धरती दे जेड़े खिते ते मर्जी विच बैठे हो तुसीं, जे पूर्ण भावना नाल सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब नूं चेते करोगे ना, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ते डुबदे बेड़ियां नूं पार करने वाले ने, भव सागर तो पार करने वाले है। ते सच्चे पातशाह रोगां तो भी बचाउणगे, इस रोग दा नाश भी करनगे। पर यह भावना किसी विरले दे अंदर आउंदी है। चित्त है चित्त समाए तां होवै रंग घना, उहदे अंदर प्रभु दा रंग लगदा है कि हाँ कुर्बानै जाऊं मेहरबाना, हाँ कुर्बानै जाऊं, हाँ कुर्बानै जाऊं तिना कह लैण जो तेरा नाउ, लैण जो तेरा नाउ तिना कह हाँ सद कुर्बानै जाऊं। काया रंगण जे थिया प्यारे, पाइया नाउ मजीठ, रंगण वाला जे रंगै साहिब, ऐसा रंग ना डीठ। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कै पास, धूड़ तिना की जे मिला जी, कहो नानक की अरदास। ये है चित्त है चित्त समाए ता होवै रंग घना। उन्हां दे अंदर पूर्ण रंग चढ़दा है। लाल रंग तिसको लगा जिसकै वड भागा, मैला कदे ना होवई नह लागै दागा। पूर्ण रंग चलदा है। हर हाँ चंचल चोर है मार, ता पावै है सच धना। इस चंचल मन नूं तू काबू कर लै, बस मन काबू करन दी देर है। सच्चे पातशाह कहंदे कि तेरे अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु हिरदे विच वसेगा। ते ताइयों ते गुरु अमरदास जी बार बार आनंद साहब दी बाणी पढ़ो, मन नूं किन्नी वारी संबोधन कीता है। सैकड़े वार आनंद साहब 40 पौड़ियां च गुरु अमरदास जी, ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। ए मन प्यारिया, ते उत्थे जिक्र किया ए मन चंचला, चतराई किने ना पाया। ये चंचल बिरती बिरती जिहड़ी मानदी है ना, ये सियाणप वाली बिरती कि हाँ हम भी होते हैं, मैं भी होना, देख लांगा मैं। महाराज कहंदे इत्थे वड्डियां वड्डियां नूं नहीं पता कित्थे गए, बहु जतन करता बलवंतकारी सिवंत सूरा चतुर दिसै। बिखम थान बसंत ऊंचै, नह सिमरन मरण कदांचत है, होवंत आज्ञा नह मरण नह सिमरन मरण कदांच है, होवंत आज्ञा भगवान पुरख है, नानक कीटी सास अकरख ते। बड़े बड़े बलवाना नूं कीड़ी लड़ा के भी साह कट दिंदा है। ओदे अगे नहीं हम होते नहीं चलदा, ओदे अगे नहीं चलदा। ये चंचल बिरती त्याग कि मैं भी होना ना भाई। इत्थे अज जिहड़ी धानक बीमारी वरत रही है, कहर मचिया होया है। कौन होंदा इत्थे, किहदी ताकत चल रही है?
जिन्हां ने जाना है, जिन्हां दा धुर लिखों फरमान लिखिया, जिनकी चीरी दरग है पाटी। पर सच्ची मुच्ची जे ये ना सिखा सके तो फिर कोई नहीं सिखा सकता। अज भी असी सुचेत होइए, अज भी गुरु अर्जुन साहब महाराज जी का यह सच कि भाई बंदिओ सुधर जाओ। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने भी यही कूक पुकार की सी, यही सब समझाया सी उच्चा कि भाई धक्का नहीं। तो अज असी कितना क धक्का कर रहे हैं। हुणे सिंह साहब ने कहा कि 100% 500% प्रॉफिट रख के चीज़ा याद रखियो। आसमान जिमी दरखत आप पैदाइश खुदाए, बंदे चशम दीदंग फनाए। ये असी भी नहीं रहना जिन्हें मर्जी इकट्ठी कर लीए। दुनिया मुरदार खुरदनी गाफल हवाए। गुरु अर्जुन साहब कहते भूत प्रेत पशु बिरतियां किथे जंगलों च जाके देखने की लोड़ नहीं। बंदियां दे सिर ते जद माया सवार हो जाई, बंदा बंदे दा नहीं रहिंदा। दुनिया मुरदार खुरदनी, बंदा बंदे नूं कट वड के खांदा। गाफल हवाए, गैबान हैवान, हराम कुछ नहीं, मुरदार बखोराए। गैबान ते हैवान बंदियां च देख लो किवें है। अज भी सतगुर दा भाव रखिए, सच्चे पातशाह मेहर करन। साहिब जी कहंदे है कि जे ये चंचल मन, ये पापी मन परां कर दिए ना, क्योंकि ये नाल नहीं जानी। जिन्ना मर्जी इकट्ठा कर लो, औलाद साड़ी सुख नहीं प्राप्त करेगी जे असी ये गफलत दी, क्योंकि वह जानदा है वली नियामत बिरादरां दरबार मिल्क खनाए, जब अजराइल बस्तनी तब चे कारे बिदाए। वो लैन आएगा अजराइल फरिश्ता, की देगा करोड़ों रुपए अरबा रुपए ले लै मेरे, मैनू छड़ दे। जब अजराइल बस्तनी तब चे कारे बिदाए, हवाल मालूम कर दंग पाख अल्लाह, बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा। ऐसियां दी संगत बख्श सच्चा पातशाह कि मन के अंदरों चंचल बिरती खत्म हो जाए, पाप खत्म हो जाए। इथे आखिरी तो हर हाँ साहिब जी कहंदे चंचल चोर है मार ता पावे है सच धना। ए मन चंचला चतराई किनै ना पाया, चतराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरा। ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगोली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विठों, उस तो कुर्बान जा वो बचाउण वाला है। इत्थे दो पदियां दी विचार की समाप्ति है। समा समाप्ति वाला विचार करदियां बेअंत प्रकार दीयां भुलां गलतियां हो गईयां होणगीयां। इन नटशल सतगुरु गुरु अर्जुन साहब कहंदे कि एक उहदी पुकार रखो, उहदे दर्शनां दी तांग रखो, ते चंचल बिरती आ पाप वाली बिरती इत्थे नहीं चलदी। इत्थे पवित्रता चलदी है, इत्थे अपना आप त्यागना चलदा है। भुलां चुकां दी खिमा है। समुचे तौर ते सारियां दा धन्नवाद है। सतगुर जी इन्हां रोगां तो बचाउण। हे प्राणनाथ गोबिंद कृपा निदान जगत गुरु, करो कृपा सच्चे पातशाह जी, इन्हां रोगां तो बचा के ठंड वरताओ। समुचे तौर ते सारियां दा धन्नवाद। भुलां चुकां दी खिमा। फतेह बुलाओ जी, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।